Okay, students, so let's continue with the lecture 6 of class 12. I hope we remember the last class. What we have done? We have done what is field. Yes, sir, we have done what is field. Yes, are you talking about so we are talking about a point charge. Keep in mind, we are talking about a point charge right now. Sir, we know what is termed as potential. We know all this thing. We also know what is termed as the potential energy of the system. See, eventually we have covered each and every important topic. And lastly, we have seen the relation. Okay, I hope so. This is not working yet. The relation between E and V. The relation between the potential and the field. Yes, we have done this thing. And this is, according to me, is the most important segment of electrostatics. What we have done, sir, can we have a bit of look? Yeah, we can have. What it is? V at R1, potential at the position R1 minus potential at the position R2 is equals to R1 to R2 E conservative dot dr. E conservative dot dr. This is the interesting thing what we have learned in the last class. And now, sir, proceeding on to, if I change this thing, if I say V at R2 minus V at R1, it will be a minus. See, this is final, this is initial. Keep in mind, this is final, this is initial from R1 to R2. R1 was the initial position, R2 was the final position. You put a negative sign, R1 to R2, E conservative dot dr. E conservative dot dr. E is the field due to the charge. E is the field due to the charge. So, and we have one more form is the differential form. We have one more form termed as the differential form. What is the differential form? Sir, the change in the potential is termed as dV. Change in the potential is termed as the dV is equals to minus E dot dr minus E dot dr. Now, this is important. This is damn important. Now, when I say the small change, it means final minus initial. It means final minus initial. So that's why I put a negative sign. Now, we will be doing it separately for the positive charge and for the negative charge. So, sir, let's take for positive charge. Just check it out. Sir, is it point charge? Yes, it is point charge. Plus Q, yes sir, plus Q. Say at a point P. Sir, you know field is radially outward. Field is radially outward. If I say this is position A, this is small position B. This is position A, this is small position B. And the separation is dr. And the separation is dr. So how you write? dV. dV can also be written as what? dV means what? dV means actually potential at B minus potential at A. Yes sir. Negative. What is E? What is E? Sir, E is in this direction and we are also moving in this direction. Means both E and dr is in the same direction. Both E and dr is in the same direction.
So how you write? So simple, k q by r square. Vectorially they are the same, so cos 0 is equals to 1 dot dr dot dr. Yes sir, check this thing out. This is a negative quantity. This is what? This is a negative quantity. So what it signifies? What it signifies? Negative quantity কি signify করছে? It signifies as we move away, as we move away from the positive charge, the potential what? So potential is decreasing. How it is decreasing? Because final minus initial, if this is a negative quantity, that means as we move away, VB is less than VA. VB is less than VA. So A is at a higher potential, B is at a lower potential. A is at a higher potential, B is at a lower potential. So this is the first basic thing. Let's move on to the next discussion. Those who are directly going to the lecture 6, I will recommend them to go through the lecture 4 and 5, then come to the lecture 6. Now, so over here, what we see for positive charge, yes, we are talking about positive charge. Key, as we move away, potential decreases. And take a very clear look. E is also directed outward. E is also directed outward. Yes, sir. So can I say that potential decreases in the direction of the field? Yes, sir. Sir, is it for the positive charge? Yeah, I am talking about the positive charge. So potential decreases in the direction of field. This is a star point. We are right now talking about the positive charge. And one more interesting thing, we also assume that potential at infinity is approximated to be 0. Potential at infinity is approximated to 0. Now this we have done with the positive charge. And what is the final integration? What is the integration? Suppose VB, or if I write something like this, VR2 minus VR1. Sir, same thing, we have done this thing beforehand. We have done this thing. Please keep in mind, this is final. Acha, let's make it initial, let's make it final. Then it will be easier. 1 by R1 by 1 by R2. We have done this thing last class. Okay? So this we have seen that as we move in the direction of the field, potential decreases. Now let's check it out for the negative charge. We won't do the same thing, okay? We will just do the basic and you will get to know. Now, what we will be doing? So the basic thing for a negative charge. चलो, let's do it for a negative charge. सर एक नेगेटिव क्यों रख दो? कोई भी डिस्टेंस r पे फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? सर इस तरफ होगा. एकदम सही बात है भाई. सर मैं जाऊंगा किस तरफ? सोचो आप सर इस तरफ जा रहे हो. सोचो आप इस तरफ जा रहे हो. ओके. फर्स्ट से VB माइनस VA. सर ये छोटा क्वांटिटी है, इसको हम dV बोलते हैं. माइनस E डॉट dr.
सर ई इस तरफ है, डी इस तरफ है, तो एंगल क्या हुआ? एंगल क्या हुआ सर? एंगल हुआ 180 डिग्री। तो ये पूरा चीज मिलकर क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, so VB will be greater than VA. So it means what? As we move away from negative charge, as we move away from the negative charge, potential increases. Perfect. Potential increases. And what we assume potential at infinity to be 0. So इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, एकदम सही। और फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है सर? फील्ड इस तरफ है। अगर तुम इस तरफ जाओगे तो क्या होगा सर? पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो राइट नाउ वी हैव गॉट अ स्टैंडर्ड थिंग कि पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of field. Potential decreases in the direction of field. Now this is a star point. You have to keep in mind. This point will be utilized from right now. Okay. First we will be showing you sums and then I will be proceeding with the concept of sphere. It's a spherical one. Okay. So let's do the next topic. ना सर अभी E और V के बारे में हम लोग बात करेंगे, E एंड V। चलो हम लोग क्या देखा सर? व्हाट वी हैव सीन? वी हैव सीन कि dV इज इक्वल्स टू E डॉट dr और एक क्या होगा? एक सर माइनस साइन होगा, एकदम परफेक्ट है। बट सर ये आप जनरलाइज कर रहे हो, दिस इज जनरलाइज थिंग। नाउ इफ आई डोंट वांट टू जनरलाइज दिस थिंग, देन व्हाट? नाउ वी हैव समथिंग। Suppose V and E has a different format, means E is a vector but V is a scalar. E is a vector and V is a scalar. Okay, now you should keep in mind V has two components. V can have two components. Okay, E is in vector form. You should keep in mind E is in vector form but dV is a scalar thing. Okay, now I will show you how to use this thing as a vector. Means you can have Ex component, you can have Ey component, you can have Ez component. You corresponding, you have dx component, you have dy component, you have dz component. Okay, and this scalar quantity can be a function of x comma y comma z. It can happen now. See, V in space, potential in space. Suppose मैं बता सकता हूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, z कोऑर्डिनेट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x y z हो सकता है भाई सर, हो सकता है। कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। चलिए सर, और E जो वेक्टर हुआ, ये वेक्टर तैयार हुआ विद Ex विद Ey प्लस Ez। अब Ex वेक्टर कैसे तैयार होगा हम लोग वो देखेंगे। सर इसके पहले एक चीज हल्का सा जान लेते हैं सर। Ex को हम लोग वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे सर? जैसे E वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे dv बाई dx। ऊपर में एक वेक्टर डाल दो या फिर तुम इसको इस जगह i कैप डाल दो।
या फिर आई कैप डाल दो। सर बात एक ही है। अब बहुत स्टूडेंट बोलेगा सर आपने गलत लिखा है। हाँ भाई मैंने गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? कुछ नहीं गलत लिखा। आई हैव स्टेटेड इसको ऐसे साइन से यूज करो। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y and z are constant. Y and z acts as constant. Similarly, if I say Ey, I will say minus del v by del y, और यहां पर हम लोग क्या मान लेंगे? j cap, और इस साइड में क्या कांस्टेंट हो जाएगा? x and z are constant. Similarly, Ez वो कैसे तैयार होगा? माइनस del v by del z, और इस साइड में क्या रहेगा? एक k कैप। यहां पर कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा? x and y are acting as constant. ये हमें इंडिविजुअली तीनों मिल जाएगा। फिर तुम एकदम वेक्टर फॉर्म ऑफ फील्ड तैयार कर सकते हो। फिर तुम क्या तैयार कर सकते हो? सर मैं पूरा वेक्टर फॉर्म ऑफ फील्ड तैयार कर सकता हूं। और अगर तुम्हें बोला गया कि भाई इस E का मैग्नीट्यूड निकालो, तो स्टूडेंट लोग क्या करता है? गलती कर बैठता है, यहीं पर वो मैग्नीट्यूड डाल के ऐड कर देता है। प्लीज ऐसा ऐड मत करो। मतलब अगर कोई बंदा ऐसा करेगा ना, ऐसा देखो ध्यान से, ये कोई भी करेगा तो ये गलत हो गया भाई, कैसा नहीं होता है। तो अगर मैं E को डिनोट करूंगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, Ex component square, Ey component square, Ez component square. This is the perfect thing. So this is a beautiful relation between E and V, and we have shown how to do it. Now I will show you with the help of an example, and then we will proceed on to a numerical. Okay? Chalo. So let me check whether the recording is still on or not. Yeah, I have to check every 15 minutes, or else all the recordings will be lost. चलो सर कोई भी एग्जाम ले लेते। चलो v is 6x square y minus 4yz plus twice zx square। चलो ऐसे रखते हैं। और तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि E का मैग्नीट्यूड निकालो एट 1, 2, -1। सर कैसे करेंगे? सिंपल भाई, E x करो वेक्टर माइनस, सर डिफरेंशिएट करो इसको सिर्फ x के टर्म्स में, सिर्फ x स्क्वायर y माइनस 4yz प्लस 2zx स्क्वायर, इसको करो। सर माइनस को रहने देते हैं, चलो रहने दो। सर x की तरफ जब करोगे तो y बन गया कांस्टेंट, तो ये हो गया 6y कांस्टेंट हो गया, और x स्क्वायर का 2x खत्म, माइनस यहाँ पर कुछ x है नहीं सर, 0 खत्म, प्लस यहाँ पर x है, हाँ सर 4x set done. So sir what it will be? Sir minus over here 12xy, yes, plus 4x done. Sir यहां पर एक i कैप होना चाहिए, yes, यहां पर सर एक i कैप होना चाहिए। सिमिलरली अब एक काम करो यार, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, 1, 2, -1 डाल दो। 1, 2 अगर बैठ गया तो ये कितना हो गया? सर ये कितना हो गया? 24 हो गया, और 1 -1 बन गया तो ये हो गया -4। 24 और -4 मिलके 20, और बीच में तो -20 I कैप। सिमिलरली you will do Ey, you will do Ez. Do it at home and find mod of E as root over of what?
EX square plus EY square plus EZ square. Now this is the basic sum. Now एक और तरीका का सम होता है, चलो ये देखो. This passes to the origin. Okay, this passes to the origin. चलो एक चीज ये बता दिया तुमको 120 डिग्री, ये बता दिया तुमको 120 डिग्री. ध्यान से, ये है 60, ये है 40, ये है 20, ये है 0. What is this line, sir? ये आर पोटेंशियल लाइन. सर इस लाइन को हम लोग एक स्पेशल नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल लाइंस. इसका मतलब क्या हुआ? इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब क्या हुआ? इस हर एक लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट चूज करो, एनी पॉइंट यू चूज, इट विल हैव द सेम पोटेंशियल. कोई भी लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट चूज करो, इट विल हैव द सेम पोटेंशियल. इसका मतलब क्या हुआ? ये सोचो पॉइंट ए है, ये सोचो पॉइंट बी है. So VA is equals to VB. This is the concept of equipotential lines. Now what we need to find? We need to find the value of E. Means भाई तुम्हें E का एक्सप्रेशन डालना है, तुम्हें इस E वेक्टर का एक्सप्रेशन डालना है और कुछ नहीं करना है. चलो सर कर लेंगे. उसके पहले ये तुम लोग कर लो, मैं थोड़ा रब करूंगा, कुछ समझाऊंगा, फिर आई विल डू इट. Now, what is that interesting thing we need to know right now? Sir, think this is a positive charge. Think this is a positive charge. Sir, the fields will be emitting out of the positive charge something like this. Yes, sir. The fields will be out of the positive charge something like this. And we have the expression for field at a distance r something like this, k q by r square. And we also have the expression for Vr. This is the scalar quantity k q by r. What we have seen? We have seen कि k q by r मतलब every r दूरी पर potential is same at a distance r from the center. At a distance r from the center, the potential are same. And what is that most important thing? We have only seen कि potential decreases in the direction of E. This is one more important point. And what is the other most important point? सर एक बार देख लेते हैं. चलिए सर एक बार देख लेते हैं. और ये जो तुम्हारा सरफेस हुआ, ये जो सरफेस हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. मतलब सेंटर से हर एक r दूरी पे, सेंटर से हर एक r दूरी पे तुम्हारा पोटेंशियल सेम होगा. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट चार्ज? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट चार्ज. सर अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर इन दोनों के बीच ये जो एंगल है, ये थीटा, फाइन थीटा. बहुत सारा इंटरेस्टेड स्टूडेंट फट से आंसर दे देगा, सर मुझे पता है थीटा 90 डिग्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कैसे पता है तुमको थीटा 90 डिग्री? प्रूफ कर सकते हो? नहीं सर हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते. चलो सर एक बार देख लेते हैं, एक हल्का सा कोई चीज देख लेते हैं. चलो हम लोग एक मान के चलते हैं. दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. दिस इज व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस. मान लो ये लाइन है इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड.
मान लो इस दोनों के बीच एंगल है थीटा, मान लो दोनों के बीच एंगल है थीटा, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है, अगर अच्छा लगे तो क्लैपिंग होना चाहिए। इस ई को हम लोग दो चीज में बांट देते, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ध्यान से देखो, ई को हम लोग दो चीज में बांट दिया, ई वेक्टर इज कंपोज्ड ऑफ ई पैरेलल प्लस ई परपेंडिकुलर। पैरेलल मतलब इससे जाएगा, हां सर इससे जाएगा। अब अगर E का कुछ पैरेलल कंपोनेंट रहेगा तो पोटेंशियल इस तरफ डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, पोटेंशियल विल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सर if E parallel is present, then V will decrease in the direction of E parallel। तो V डिक्रीज करेगा इस तरफ, और अगर V डिक्रीज कर जाता है तो क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा? नो, दिस विल नेवर बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर तुम मान लेते हो कि E पैरेलल रहे तो V को डिक्रीज होना चाहिए, और हम लोग तो ऑलरेडी एज्यूम कर लिया सर ये क्या है, ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर V डिक्रीज कर गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ? सर इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ मतलब नहीं हुआ। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब सारा जगह पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो EPS will be invalid। EPS तो रहेगा नहीं, बट आपने बोल दिया कि इसको क्या होना चाहिए, इसको EPS होना चाहिए। तो इसको EPS होने के लिए यहां पर इसको होना चाहिए नहीं सर। सो E parallel has to be a null vector, क्योंकि अगर E पैरेलल रहेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही नहीं रहा। सो E पैरेलल का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ E परपेंडिकुलर रहेगा। ओनली E परपेंडिकुलर विल बी प्रेजेंट। सर खाली क्या रहेगा? सर खाली E परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ थीटा का वैल्यू आपका पास कितना आया? ये थीटा का वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री हुआ। The value of theta is 90 degree, and here we come to a very important conclusion. What is that important conclusion? That potential and field lines always intersect at 90 degree. Potential and the field line always intersect at 90 degree. So this is one of the beautiful thing. ये क्वेश्चन कभी स्कूल में आता है, एक कंप्यूटर में तो नहीं आता है, बस समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। पहले भी मैं बोल सकता था 90 डिग्री, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, यू मस्ट नो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस सम। सर आई एम रबिंग दिस थिंग ऑफ। So sir, what is the most important thing? E and V lines. E and V lines always intersect at right angles. Always intersect at right angles. Sir, इसका तो समझ में आ गया। Now, और एक चीज, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर तुमको मैं बोल रहा हूं, अगर ये तुम्हारा फील्ड लाइंस हुआ, ये तुम्हारा फील्ड लाइंस हुआ, तो पोटेंशियल लाइंस ऐसा होगा, ये V1, V2, V3। तो लॉजिकली सर हर एक ये होता है, हाँ सर ये होगा 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री होगा, परफेक्ट होगा। नाउ लॉजिकली बताओ तो सर कौन ज्यादा है? सर लॉजिकली अगर मैं फील्ड के तरफ जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। यस, तो इसका मतलब V1 is greater than V2 greater than
way of approaching this sum. सर हमको पता है कि सर लाइंस ऐसा है, फील्ड लाइंस नहीं, पोटेंशियल लाइंस. ये पोटेंशियल लाइन है 0 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट. ये लाइंस अगर ऐसा है तो हमको सर क्या चाहिए? एक ऐसा फील्ड लाइंस जो इसको कट करे एट व्हाट सर? कट करे 90 डिग्री. यही फील्ड लाइंस होना चाहिए, मतलब ऐसा फील्ड लाइंस होना चाहिए. अब डायरेक्शन किस तरफ होगा? डायरेक्शन इस तरफ होगा या फिर डायरेक्शन इस तरफ होगा? लॉजिकली देखते हैं सर. ये 60 वोल्ट, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 0 वोल्ट. मैंने क्या कहा? फील्ड ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो एरो सर आपने गलत दे दिया, एरो इस तरफ होगा. ये होगा आपका फील्ड का एरो. बट मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था भाई ई को तुमको वेक्टर एक्सप्रेशन पे डालो. यू हैव टू फाइंड ई इन वेक्टर एक्सप्रेशन. सर कैसे करते? सर ये एंगल आपके पास 120 डिग्री है. हाँ सर हमारे पास 120 डिग्री है. तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है. तो ये भी आपका कितना डिग्री आया? 30 डिग्री आया. जिसको बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो रहे है उसके लिए वापस एक बार और मैं ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज 30 डिग्री एंड द पोटेंशियल लाइन इज समथिंग लाइक दिस. नाउ व्हाट वी हैव लर्न्ड. सर एक बार हम लोग क्या सीखे? मैग्नीट्यूड. सर मैग्नीट्यूड पे आओ, मैग्नीट्यूड पे आओ. सर ये आता है ना dv by dr. हाँ सर dv by dr. E का जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा? dv by dr. dv by dr. ओके सर dv by dr. चलो सर मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया. सर ये dv मतलब कितना गैपिंग है सर इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच गैपिंग है 20. और dr ये जो सर ये जो देखो E हो गया क्या? V3 mod ऑफ E क्या हो गया? V3 माइनस V2 बाई ये हो गया R. सर अब दोनों का हर एक का डिफरेंस कितना है भाई? 20 वोल्ट है. पता है 20 वोल्ट है. गैपिंग कितना होगा? सर एक चीज सर मैंने कुछ डेटा शायद दिया था ना? डेटा दिया था? नहीं मैंने शायद भूल गया था डेटा देने के लिए. इसको आप 10 यूनिट्स पकड़ लो, 10 यूनिट्स. तो ये अगर 10 यूनिट्स होगा तो ये क्या होगा? R क्या होगा? So R and R is equals to 10 of cos 30. R होगा 10 of cos 30. cos 30 क्या होता है? √3/2. तो क्या होगा ये? 5. तो ये क्या होगा? 5√3. ब्यूटीफुल. सो E का जो मैग्नीट्यूड हुआ, E का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 20 डिवाइडेड बाई 5√3. E का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया? 20 बाई 5√3. इसका मतलब क्या हो गया? 4/√3. खत्म, मैग्नीट्यूड खत्म. अब आया भाई डायरेक्शन पे. डायरेक्शन हुआ इस तरफ. इस तरफ का मतलब आई हैव टू फॉर्म अ यूनिट वेक्टर. कीप इन माइंड. सो E वेक्टर इज टर्म्ड एज 4√3 multiplied by an n cap. And what is this n cap? N cap is a unit vector directed in this way. And how you directed? जो क्लास 11 में मेरे पास सब क्लास किया उसको पता है यूनिट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है. इसको 1 यूनिट पकड़ लो. इस तरफ क्या होगा? 1 cos 30 minus I cap प्लस इस तरफ क्या होगा? 1 sin 30 minus J cap. 1 cos 30 minus I cap, 1 sin 30 minus J cap. So ultimately sir 1 cos 30 क्या हो गया? √3/2 I cap plus half J cap. सारा माइनस बाहर. तुमको E का मैग्नीट्यूड पता है? हाँ सर मुझे E का मैग्नीट्यूड पता है. तुमको E का डायरेक्शन पता है? सर मुझे E का डायरेक्शन पता है. सर एकदम वेक्टर लिख दो. फुल वेक्टर इज कम्स आउट टू बी 4/√3. सर बाहर में माइनस पकड़ लो. सर 2 अगर बाहर चला गया हाफ तो क्या होगा? √3 I cap प्लस J cap. 2 कट गया, 2 कट गया तो क्या रहेगा? माइनस 2√3 minus 2√3 3 I cap plus J cap. Now this is one of the sums which comes in many competitive exams. The last sum and this sum are the two most important applications of E and V. There are many more applications we will see in the later classes. Okay.
So by this we have almost completed 70% of this E and V concept. Now I will directly go with the sphere concept, line charge, all this thing, and the potential energy. Now I will be clubbing the concepts together. So before clubbing the concepts together, you need to know what are these things. If we are done with these things, then we will be proceeding on. So let's do the next topic. So let's check me whether the recording is still on. Okay. Now, next is sphere concept. Now this is very important. Why I say this is important? Now first of all, we will have some new terms named as conducting sphere. Conducting sphere, another sphere named as non-conducting sphere. What is conducting sphere? Conducting sphere means all the charges are present on the surface. All the charges are present on the surface because of the repulsion. Because of repulsion. Because of repulsion. सर सरफेस के बाहर जा नहीं सकता, इसीलिए जितना रिपेल करके वो बाहर में रहेगा. नाउ एक मिसकंसेप्शन है बहुत स्टूडेंट के, सर चार्जेस आर स्टैटिक. नो, इन द सरफेस चार्जेस कभी स्टैटिक नहीं रहता. चार्जेस फ्लो करता है या चार्जेस मूव करता है, सरफेस पे मूव करेगा, बट हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि चार्जेस स्टैटिक है. ओके. और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या हुआ? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब हुआ charges are distributed within the sphere. Charges are distributed within the sphere. ये distribution दो तरीके से हो सकता है. Either distribution uniform हो सकता है और non uniform हो सकता है. Now sir, एक सिंपल सा बात है, चलो देख लेते हैं क्या सिंपल सा बात हुआ और कैसे क्या करना पड़ेगा. एक छोटा सा हम लोग टेक्निक यूज करेंगे. दिस टेक्निक इज ओनली फॉर द स्फीयर कॉन्सेप्ट. इज ओनली फॉर द स्फीयर कॉन्सेप्ट. कि field at any point. Field at any point, okay, is given by K charge enclosed by imaginary sphere with the point on the circumference whole divided by the radius is square. सर इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया. चलो हमको भी नहीं आया, हम समझा दें. Field at a point is K, means K is that constant, into the charge enclosed by the imaginary sphere
विद द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, मींस जिस पॉइंट को तुम बोल रहे हो उस पॉइंट को सर्कमफ्रेंस में रख के एक स्फीयर ड्रॉ करो। सर इसको समझाते, सोचो एक स्फीयर है जहां पर चार्जेस ऐसा है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या स्फीयर हो गया सर, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। भाई मैंने तुमको क्या बोला कि एक पॉइंट है, सोचो P एक पॉइंट है, हाँ सर पॉइंट है, सर P डैश एक पॉइंट है, और भी एक पॉइंट है P डबल डैश, एक और पॉइंट है P डबल डैश। तो कैसे क्या करना पड़ेगा सर, आपको अगर बोला कि फील्ड एट P को निकालो भाई, तो क्या सर इस पॉइंट को आप सर्कमफ्रेंस में लाके एक क्या ड्रॉ करोगे, एक बड़ा सा स्फीयर ड्रॉ करो। इस पॉइंट को सर्कमफ्रेंस पे रखो, देखो पॉइंट को कहां पर रखो, पॉइंट को सर्कमफ्रेंस पे रखो और एक बड़ा सा इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करो, और इसका नाम दो रेडियस r1, इसका नाम दो रेडियस r1। और हालांकि स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, वो रहने दो। तो क्या होगा, क्या अब तुमको क्या ढूंढना है, ये इमेजिनरी स्फीयर के अंदर कितना चार्ज हुआ। सर इमेजिनरी स्फीयर के अंदर तो ये क्यू ही हुआ, क्यू हुआ, बोलो हाँ सर क्यू हुआ, टोटल चार्ज क्यू ही हुआ, बट बाई क्या होगा, अब आया E एट P डैश, यार ये तो सरफेस पे है, तो यही अगर स्फीयर में ड्रॉ करूंगा तो क्या लिखूंगा, K Q लिखूंगा, और नीचे क्या आएगा, बिग R स्क्वायर, हाँ सर। और लास्टली E एट P डबल डैश, मतलब यहां पर, तो यहां पर एक छोटा सा स्फीयर आएगा, हाँ सर। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस सोचो R2 है, और इसका चार्ज सेम रहेगा सर, इसका चार्ज सेम नहीं रहेगा, कुछ कम होगा, हाँ होगा, कितना कम होगा सर मालूम नहीं, बट कम होगा, K Q डैश बाई R2 का, K Q डैश बाई R2 का, सिंपल सी बात है सर, K Q डैश बाई R2 का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग द फील्ड, ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग द फील्ड। अब हम लोग एक एक केसेस को उठा के करेंगे, ठीक है, चलो लेट्स सी इट। Let's do the concept of, first what we will be studying. Acha, one more thing you should keep in mind, this is very important, V at R1 minus V at R2 is integration R1 to R2 E dot dr। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, क्या इंपॉर्टेंट सी चीज है सर, आपको देखना पड़ेगा, ये जो E है ना, E should be same। सर E अगर डिफरेंट हो गया, E मानो डिफरेंट हो गया, तो तुमको दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक ही इंटीग्रेशन में तो तुम दो E डाल नहीं सकते, तुमको अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, द नेचर ऑफ E मस्ट बी सेम, ये स्टार पॉइंट है। चलो ये हम लोग कैसे करते हैं दिखते। फर्स्ट इज द कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा भाई, कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो या फिर हॉलो हो कोई फर्क नहीं, आइदर सॉलिड हॉलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा जो चार्जेस रहेगा वो कहां पर होगा, वो ऑन द सरफेस होगा। मींस इट इज आइदर सॉलिड भी हो सकता है और
फिर हॉलो हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि चार्जेस आर ऑन द सरफेस। चलो सर, हमको निकालना क्या है? सर हमको E आउटसाइड जानना पड़ेगा, E सरफेस जानना पड़ेगा, E इनसाइड जानना पड़ेगा, V आउटसाइड जानना पड़ेगा, V इनसाइड जानना पड़ेगा, V सरफेस जानना पड़ेगा। Okay, one important thing. Anyone has the idea where I can get the ink of this thing? I do get ink here. अगर किसी के पास ये खबर हो कि इस पेन का इंक कहां पर मिलता है तो मुझे ऑब्वियसली बताओ, क्योंकि जब इंक का बोतल खत्म हो जाएगा आई कैन राइट इन द बोर्ड। बस मैक्सिमम 2 और लेक्चर होगा, इससे ज्यादा नहीं। सो यूज योर रिसोर्सेस, किसी से मिल जाएगा तो बता देना मुझे। सो ई आउट ई इन ये सब हमको निकालना है। सर चलो करते हैं। First, I draw a sphere. Sir, this is either hollow or solid, I don't know, but the charges are present on the surface. What are the informations we will have? Let Q is the charge present. Let Q is the charge present. Fantastic. And what is the radius? Radius equals to capital R. Radius equals to capital R. हमें क्या ढूंढना है सर? E आउटसाइड ढूंढना है। आउटसाइड का मतलब कोई भी पॉइंट P ले लो जो कि यहां से R दूरी पर है, तो E आउट। देखो लॉजिकली सर यहां पर तुम एक बड़ा सा स्फीयर ड्रॉ करो, हां से ड्रॉ करते पूरा चार्ज ही एनक्लोज कर रहे हैं, पूरा चार्ज एनक्लोज कर रहे हैं। फैंटास्टिक। सर आपको पता है फील्ड आर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, मैंने बताया था ना? बोलो हाँ सर, आपने बताया था कि फील्ड आर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। ई आउट का पहले मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड क्या होगा? K होगा, Q होगा बाई R स्क्वायर। फैंटास्टिक। And one thing to be kept in mind, R is greater than the radius. And what is the unit vector? I write something like this. If I do this, then it will be a complete vector. It will be a complete vector. This R cap signifies radially outward. Similarly, E at the surface. Surface में भी तुम करोगे तो पूरा चार्ज इनक्लोज हो रहा है, K Q ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा कैपिटल R कैप, रेडियली आउटवर्ड। अब बारी है E इनसाइड। अब देखो सर, आप इनसाइड में कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट, अगर एक स्फीयर ड्रॉ करो, एक्चुअली क्या यहां पर कोई चार्ज इनक्लोज हो रहा है? सर एक्चुअली कोई चार्ज यहां पर इनक्लोज हो ही नहीं रहे। व्हाई? क्योंकि सारा चार्ज कहां पर है? सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है। तो E इनसाइड पे ये जो नेट चार्ज होगा ये तो जीरो बन गया, ये R इज लेस देन R, बस बात खत्म। तो ये क्या हो गया? तो ये अल्टीमेटली जीरो वेक्टर हो गया, ये अल्टीमेटली जीरो हो गया। सो व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव लर्न्ड? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, field inside a conductor is always zero. Field inside a conductor is always zero. Now this what we have seen, we have seen the relation between E. Now I will see the relation between E and V. V को कैसे निकालना पड़ता है? सर यही चीज हम लोग करेंगे, बस ये दोनों चीज, ये चीज को रख दो, मैं बाकी को इस चीज को रब कर दूंगा। ओके, इसको रहने दो। ना सर चलो शुरू करते हैं। अब बारी है
V आउटसाइड। नाउ V आउटसाइड करने के लिए एक चीज तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, V एट इंफिनिटी को हम लोग जीरो पकड़ के चलेंगे। V एट इंफिनिटी को हम लोग क्या पकड़ के चलेंगे? जीरो। तो देखो आउटसाइड जो पॉइंट है, सोच लो यहां से लेकर तुम कहां पर जाने की कोशिश कर रहे हो? वहां से लेकर तुम इंफिनिटी जाने की कोशिश कर रहे हो। तो V एट R माइनस V एट इंफिनिटी, आया समझ में? यहां से तुम इंफिनिटी जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो होगा स्मॉल r से इंफिनिटी, और ये क्या होगा? E कौन सा होगा? E आउटसाइड डॉट dr, हाँ ना? ये बाहर में क्या हुआ? बाहर में E आउटसाइड हुआ। डॉट dr मतलब जहां से तुम जा रहे हो, फ्रॉम वेयर वी आर मूविंग? वी आर मूविंग फ्रॉम r टू इंफिनिटी। तो एक चीज ध्यान में रखो, E भी इस तरफ है, dr भी इस तरफ है, हाँ है ना? दोनों सेम, दोनों रेडियली आउटवर्ड, तो एंगल क्या है? 0 डिग्री। वेरी गुड। V एट R माइनस V एट इंफिनिटी इज एज्यूम्ड टू बी 0। R से लेकर इंफिनिटी, ये क्या हो गया? K Q by R स्क्वायर। ये देखो K Q by R स्क्वायर, और ये सिंपल dr, और cos 0 का वैल्यू 1। K Q बाहर आ गया, माइनस 1 by R फ्रॉम R टू इंफिनिटी। अब ये हो गया K Q by R। अब सर VR क्या हो गया? सर VR नहीं, ये हो गया V आउटसाइड। V आउटसाइड क्या हो गया? K Q by R। सर isn't it acting as a point charge? Yes, it is acting as a point charge. बाहर में it is acting as point charge. Similarly, अब सरफेस पे क्या होगा? सरफेस पे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, V सरफेस पे क्या हो गया? सर सेम चीज, ये बड़ा R से इंफिनिटी, बिग R टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो गया? सर K Q by big R, K Q by big R. Now what is inside? What is inside? सर ये सब चीज को हम लोग रब करते हैं। Now see the point. Inside and outside value of e's are different. तो sir you can't write v inside minus v infinity. सर मैं लिख सकता हूं, बट एक फर्क हो जाएगा। क्यों फर्क होगा? क्योंकि इनसाइड में e का वैल्यू अलग है, आउटसाइड में e का वैल्यू अलग है। तो तुम दोनों को क्लब मत करो भाई, दोनों को सेम नहीं है, तो तुमको अलग अलग से लिखना पड़ेगा। कैसे? v inside minus v infinity can be written as v inside से लेकर तुम भाई v सरफेस के जाओ, पहले सरफेस तक जाओ, प्लस v सरफेस से लेकर v इंफिनिटी तक जाओ। ओके, और अब बात है सर हमको v इंफिनिटी मालूम है, 0 है। सर v सरफेस मालूम है, हाँ सर मालूम है ना, क्या है ये? तो सर ये चीज को ऐसे हम लोग लिखना पड़ेगा। अब फंडा क्या है सर? एक चीज करें सर, ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो हम लोग ये सब क्यों करेंगे? हम लोग डायरेक्ट v इनसाइड से v सरफेस तक चलते हैं, v इनसाइड से v सरफेस तक चलते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा? छोटा r से बड़ा r होगा, where छोटा r is less than बड़ा r। मुझे इंटीग्रेशन यहां से सिर्फ यहां तक करो, तो ये क्या इंटीग्रेशन होगा? e इनसाइड का इंटीग्रेशन होगा, डॉट dr। Please understand this thing. This is damn important. This is a very interesting thing. Why we need outside thing? We don't need outside thing. तुम्हें v surface पता है? Yes, I know v surface. तुमको v inside निकालना है? Yes sir, मुझे v inside निकालना है। तो भाई v inside से लेकर surface तक जाओ, क्योंकि तुम्हें तो surface ऑलरेडी मालूम है। देखो surface मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो inside से लेकर surface तक जाओ, ताकि तुम्हें e inside दिखेगा। तुम्हें सिर्फ e inside मालूम है, आउटसाइड का जरूरत भी नहीं, आउटसाइड का जरूरत भी नहीं, तो बस यहां से काम हो जाएगा। बोलो हाँ सर काम हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e इनसाइड? इन दिस केस द वैल्यू ऑफ e इनसाइड इज कम्स आउट टू बी 0, so it is 0. that means v inside is equals to v surface. Since the value of E is 0, that's why V at the surface is
same as the V inside the sphere. That's why or else कुछ नहीं होगा. Since inside और since E inside 0 है, इसीलिए ये बंदा 0 हो गया. अगर ये 0 नहीं होता तो ये कभी सेम नहीं होता. ये 0 है इसीलिए इन दोनों सेम है. अगर ये 0 नहीं होगा तो ये सेम नहीं होगा. We will see after this example. Okay, so we have ultimately got what is V inside, what is V surface, what is V outside, what is E inside, what is E surface, and what is E outside. Let's make a chart of it. Now, so what we get, sir? So first we are only talking about conducting. Conducting what? Conducting sphere. Solid or hollow, no issues. E out vectorially given as k q by r square. See the style I am writing. R is greater than the capital R. E surface vectorially k q by caps r square, and it is r cap. What is E inside? 0 cap. What is V out? Now V out is a scalar quantity, so it comes out, and keeping in mind V infinity to be 0, V infinity to be 0, k q by small r, where small r is greater than the capital R. V surface क्या होगा? k q by caps r. Small r और caps r same है. और सर V inside क्या है? It is same as a V surface. Now here let's draw a graph. So जो एक ही ग्राफ है मैं अलग अलग करके दे रहा हूं. E का मॉड दिया रहेगा. हाँ, E का मॉड, और V is a स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए नॉर्मल ग्राफ से चलेगा. पहला बात देखो सर, जब तक तुम्हारा सरफेस पे नहीं आ रहा है फील्ड है 0, अचानक पे सरफेस पे आया और ऐसा, E is proportional to 1 by small r square. Keep in mind, see, E is proportional to 1 by small r square. And what is this? Is kq by r square. So what I see field, the magnitude of the field is maximum at the surface. Magnitude of the field is maximum at the surface. And right now let's talk about V. Sir, say R. Sir, inside the surface का दोनों का potential same है. Yes. और फिर so over here V is proportional to 1 by R, and in this case this is k q by R, and so V is maximum either inside or surface. Then it decreases with 1 by R, and it decreases 1 by R. Here we have the complete scenario of a conducting sphere. How I related E and V in the same scenario. That's why I have made V clear of. Then I found the relation. Now we will be doing with the non-conducting sphere. Okay? Chalo, let's check whether the recording is still on or not. Yeah, it's still on. Okay, it has been almost 1 hour. I know. Nothing. কিছুই হয়নি এখন পড়াশোনা. এবার শুরু হবে আস্তে আস্তে পড়াশোনা.
right now we will be starting off with our main thing. This all are bacha things. Now here we move on with solid. See, non-conducting sphere is always solid, huh? It can't be hollow non-conducting sphere. Now we will assume two things. See, generally what actually comes in the examination, let's do it first, then I will proceed on to some advanced level. Is, I say, uniform distribution. I will do both the thing. I will do the uniform distribution and the non-uniform distribution today only. So listen to me very carefully. Uniform distribution. Keep in mind, I won't draw the same diagram every time. It means uniform distribution का मतलब क्या हुआ? Charge is uniformly distributed over the volume. Charge is uniformly distributed over the volume. If I say the total charge is Q and the radius is R, then I say density as Q by 4/3 pi R cube. And this rho happens to be a constant. This rho happens to be a constant. Chalo, done. Same sir, what we need to find? E out. Check it out. I won't do the repeat the same thing. अगर तुम्हें बाहर के पॉइंट चाहिए, what you do a bigger sphere. Yes, I draw a bigger sphere. So K Q by R square, where R is greater than the capital R. Exact same. देखो बाहर का जो पॉइंट है, सोचो ये वाला, ये पॉइंट P पे है, तो बाहर में तो सारा चार्ज तो इंक्लूडेड है ना, सारा चार्ज इंक्लूडेड है. हाँ सर, सारा चार्ज इंक्लूडेड है, तो सेम होगा. सिमिलरली यहाँ का जो V आउट होगा वो भी सेम होगा, K Q by R एकदम. सिमिलरली E सरफेस क्या होगा सर? E सरफेस सेम होगा, K Q by R स्क्वायर. V सरफेस क्या होगा? K Q by R. बट पंगा है इनसाइड पे. अब इनसाइड पे कोई पॉइंट चूज कीजिए सर. सोच लो ये वाला पॉइंट जो कि R डैश, जो कि सेंटर से R डैश दूरी पर है, सेंटर से R डैश दूरी पर है. तो मुझे सर इतने में जितना चार्ज है, इतने में कितना चार्ज है, इतने में जितना चार्ज है वही चाहिए. E इनसाइड. अच्छा, मैग्नीट्यूड डाल छोड़ दो, इतना वेक्टर में करते. K Q डैश बाई R डैश का होल स्क्वायर और R डैश का कैप. R डैश का कैप मतलब रेडियली, बस इस पॉइंट पे देखोगे तो रेडियली आउटपुट. अब ये Q डैश क्या है? Q डैश हो गया तुम्हारा चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द स्मॉलर स्फीयर. हाँ या नहीं? तो हम लोग क्या करते, डेंसिटी इनटू उस छोटा चीज का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई स्मॉल r डैश क्यूब. ब्यूटीफुल sir. Two expressions can be there. Either you write this way, this is an acceptable thing, or you write like this way. Sir, it comes out to be Q by R cube R dash. Wow. And it comes out to be, sir, नीचे R dash square और R dash square कट जाएगा, K cube by big R cube और R dash, और कुछ नहीं रहेगा. और यहाँ पर वेक्टर के लिए R dash का कैप. तो सर ये R dash और R dash का कैप दोनों मिलके ना यही होता है. देखो सर, डायरेक्ट R डैश का वेक्टर डाल दो. डायरेक्ट क्या होगा? R डैश का एक वेक्टर डाल दो. क्यों मैंने डाला? क्योंकि R डैश का मैग्नीट्यूड हो गया और R डैश क्या हो गया? डायरेक्ट R डैश का वेक्टर ही डाल दो. R डैश इज रेडियली आउटवर्ड. नाउ अब सर आपने E इनसाइड निकाल लिया, अब तो आपको V इनसाइड निकालना चाहिए. यस सर, मुझे V इनसाइड चाहिए. तो क्या करेंगे? तो हम लोग यहीं पर करेंगे सर V इनसाइड. Sir, inside
इनसाइड से तुम कहां पर जाओगे? इनसाइड से हमें सरफेस तक जाना पड़ेगा। क्यों सरफेस तक जाना पड़ेगा? क्योंकि इनसाइड में फील्ड अलग है, आउटसाइड में फील्ड अलग है। इनसाइड से सरफेस, छोटा r से बड़ा r। छोटा r सर आप बोलोगे सर r डैश से बड़ा r करो, r डैश से बड़ा r करो, कोई बात नहीं। तो मैं इसको क्या करूंगा, r डैश से बड़ा r करूंगा, e इनसाइड डॉट dr डैश बना दो, डॉट dr डैश बना दो। तुम यहां पर r भी लिख सकते हो, dr भी लिख सकते हो, यहां पर r लिख दो। सिर्फ एक चीज याद रखो, एक चीज लिख देना, r डैश इज लेस देन कैपिटल R, ये लिखने से चलेगा। r डैश लेस देन कैपिटल R, ये लिखने से चलेगा। अब सर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? चलो यार ये पॉइंट सर ये हम लोग कहां पर करेंगे? ये हम लोग करेंगे ऊपर। ओके, आई विल रब दिस थिंग्स एंड आई विल डू दिस थिंग एट द टॉप। Okay, you will first write the code, so you know how to write this thing. You know, this is not a difficult thing for you. बस only this thing, हाँ? चलो, v inside minus kq by r, तुमको तो पता है, हाँ सर पता है। देखो, kq by rq, ये सारा कांस्टेंट है, निकाल दो भाई, बाहर निकाल दो। समझ में आया कुछ सर? अरे हाँ सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। मैंने इसको r डैश बिना लिख के r ही पकड़ लिया। हाँ, सिर्फ इतना लिख दो, r इज लेस देन कैपिटल R, r इज लेस देन कैपिटल R। हाँ, और वहां पर r इज ग्रेटर देन द कैपिटल R लिख दो तो अच्छा रहेगा। r dr क्यों हुआ भाई? क्योंकि ये dr जो वेक्टर था और ये r डैश जो वेक्टर था, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब r भी इस तरफ, dr भी इस तरफ। You are going from here to here, so dr is outside and r is also outside. And what is r dr? It will be r square by 2. See how I write it. kq by r cube. See I write twice r cube. Why I twice r cube? By 2, तो ऊपर आएगा r square. Perfect. Now it's perfect. Now v inside को क्या लिखोगे? ये माइनस उस साइड में चला जाएगा, kq by 2r cube r square minus r square plus kq by r। सर इसको थोड़ा इजी करके लिखे। हाँ सर इजी करके लिखो। वाओ, ब्यूटिफुल, दिस इज ऑसम। This is classic thing. Now you can't derive this thing in examination hall. You have to remember this thing. You have to remember this thing. You can't derive this thing in the examination hall. Okay? So keep in mind this whole scenario. You have to practice it and keep remember this thing. Now I will make the total gist of this thing and will draw the graphs. Chalo. Hello. 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 আচ্ছা আপনি একটু ক্লাসে আছি, আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি আপনাকে একটু পরে কল করি। ওকে ঠিক আছে, ওকে। Now let's I hope so, let's make this thing the last segment and then the next lecture I will do all the cavity concepts. Okay, so what we were doing, solid non-conducting sphere, right? Yes sir, what do you write?
you write E, you write V. Outside K Q by small r square, where small r is greater than the capital R. And in this case K Q by R, where small r is greater than the capital R. R when equals to R, it will be K Q by caps R square. It will be K Q by caps R. And when R is less than the small r, how you write K Q small r by R cube. I am only talking about the magnitude. I am only talking about the magnitude, not the vector. Okay. And when r is less than the small r, you should keep in mind K Q by 2r cube 3r square. अब एक चीज देखो, ये किस चीज का इक्वेशन है भाई? सर ये जिसको पता है, ये है एक पैराबोलिक. मुझे मैथ्स नहीं आता है, जिसको आता है उसको पता होगा ये पैराबोलिक होगा. और ये जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक इक्वेशन. अब सर ग्राफ्स पे आते हैं. सेम सर. अब देखो यहां पर E इनसाइड और E आउटसाइड को ध्यान से हम लोग नोटिस करेंगे. E outside is proportional to 1 by r square and E inside is proportional to r. ध्यान से देखो, E inside is proportional to r. ये तो बेटा कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो r जितना बढ़ेगा इनसाइड उतना बढ़ेगा. तो E at the center पे क्या होगा? E at the center 0 है क्योंकि r 0 होगा, तो सेंटर से लीनियरली बढ़ेगा. कब तक बढ़ेगा सर? सरफेस तक बढ़ेगा. फिर क्या होगा भाई? फिर ये डिक्रीज करेगा. E is proportional to 1 by r square. E is proportional to r. यहां पर भी E मैक्सिमम कहां पर हुआ? यहां पर भी E is maximum at the surface. Is maximum at the surface. अब आते सर V पे. पहला बात सर, ये R, यहां से तुम एक चीज देखो, यहां से तो हाइपरबोलिक है, बट फिर क्या है सर? एक चीज है यहां पर पैराबोलिक. कहां पर? एक चीज V एट द सेंटर करो. सेंटर मतलब छोटा r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बनाओ 3 by 2 K Q by R. सो इसका मतलब क्या हुआ? अरे V center is maximum. This is what sphere? मैंने ये कौन सा स्फीयर लिया था? मैंने ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लिया था. So potential is maximum at the center. और वो जितना जा रहा है वो उतना आहिस्ता आहिस्ते कम होता गया. ये हुआ 3 by 2 K Q by R. ये हुआ सिंपल K Q by R. This is parabolic. This is hyperbolic. Wow, we have this thing. So ये मैक्सिमम कहां पर है? V सेंटर पे मैक्सिमम है. अब बहुत सारा क्वेश्चन स्कूल में क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ व्हेन r is equals to r by 2, VR is equals to 3r by 2. इस चीज का ये क्वेश्चन है. बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन. 99% स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं. क्यों? लोग एक बार यहां पर r by 2 बिठाते हैं, फिर ये यहां पर बिठाते हैं और 2 by 3 करते. नहीं सर, पहला जब r by 2 होगा ना तो ये बिठेगा, और जब 3r by 2 होगा ये हो गया आपका आउटसाइड और ये हो गया आपका इनसाइड. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल डिफरेंस in solid non-conducting sphere. Now this we have talked about uniform distribution. Okay, so and I hope so next class I will be dealing with the non-uniform distribution and the cavity, yes, and the line charge, arc, and the concept of potential energy and the graphs of E and V with 2-point charges and the graphs of E and V. So by the time we will be ending this thing, then we will be doing Gauss theorem, and lastly dipole. We end up with electrostats. I think 4 more classes more than enough to wrap this thing up. Okay,
So chalo, this is the 6th class. Hope so. It's good.